आपके कोई ऐसा स्टूडेंट जिसने बहुत स्ट्रगल करी हो एंड he or she has cracked the exam? Her name is Jyotinder. She was working with PGI as a nurse. So very hard working. Night duties करना, अगले दिन क्लास लगाना. तो वो हार्ड वर्क मुझे हमेशा याद आता है और मैं खुद इंस्पायर होता हूँ उससे. There's another boy, Durmil Singh. एक बार मुझे याद है वो बारिश में भीग गया and he was sitting at the last bench. एसी चल रहे थे और पूरी क्लास होने के बाद ही केम टू मी, सर इस एग्जाम में इसको क्लियर करने के लिए क्या करना पड़ता है दूसरों से अलग? आई सेड यही करना पड़ता है जो किया है आज. Today we have Anurag sir from Dronacharya IAS Academy with us. Sir has cleared SSB 8 times and he was ranked 211 in PCS in the year 2012. Hello sir, please tell us more about this. Rashmi, I cracked 8 SSBs, you are right, for defense forces. Okay. That I didn't join by choice only. Okay. Because some other priorities came up in life. As far as PCS is concerned, हाँ ठीक है, उसमें I got ranked 211. वो तो बहुत अच्छा रैंक है सर. In 2012, but I was merit out. Okay. Seats कम थी तो merit पहले खत्म हो गई. तो but I'm happy with whatever I'm doing. No regrets at all. तो आपको लगता है कि merit out होने में luck था involved and you think luck plays a very important role in this IAS journey for everybody? Yeah, you can say luck plays role everywhere. In everything, luck plays role. What I feel is 3 things play a role. Normally, we consider 2 things. We say hard work plays the role and your luck plays the role. एक तीसरी चीज भी है. That is your attitude, your response towards that particular thing or towards that exam. I can say 50% is your preparation, your hard work. Okay. Yes, 20% is luck. 30% is your response to that particular thing, response to that particular exam. ये 30% के बारे में लोग बात नहीं करते हैं ज्यादा. ये 30% के बारे में, ये 30% पता नहीं चलता कि ये 30% है क्या. फॉर एग्जाम्पल, आपने लोगों को सुना होगा कि मैं एग्जाम देने गया, आई वेंट नंब. वहां पे जाके मेरे को समझ में नहीं आया क्या हो रहा है, मेरे घबरा गया. दैट इज योर ओवरऑल रिस्पॉन्स टू द एग्जाम. नॉट ओनली टू द एग्जाम बट ओवरऑल रिस्पॉन्स टू द प्रिपरेशन ऑल्सो. आपने ये भी देखा होगा कि पहले पढ़ना नहीं है, घूमते रहना है और एंड में, और जब एग्जाम 2-3 महीने पहले पूरा 2-3 महीने पहले पूरा जोर लगा देना है कि बस मैंने, दैट इज लाइक gluttoning everything on the spot and vomiting it out on the examination sheet. ये एकेडमिक्स में चल जाता है पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये नहीं चलता. कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो तैयारी है, ये स्पेशली IAS I'm talking about, ये किसी स्टेयर्स की तरह नहीं चलती है. ये फर्स्ट स्टेप प्रीलिम्स, सेकंड स्टेप मेंस, थर्ड स्टेप is your interview. ये पेड़ की तरह उगती है. If you are studying something, holistic approach. अगर आप गांधी जी के बारे में पढ़ रहे हैं तो गांधी जी के बारे में साथ साथ में गांधीइज्म भी तो उसी टाइम पे पढ़ेंगे ना. You can't say कि this is Gandhi for prelims, this is Gandhi for mains, this is Gandhi for interview. So आपके लिए गांधी तभी यूजफुल है जब गांधीइज्म आपकी पर्सनैलिटी का पार्ट बन रहा है. I'm just taking the example of गांधी जी, but everywhere else it works like this. आप जो भी पढ़ते हैं, it should become the part of your personality. Brings me to my next question कि IAS आपको मतलब क्यों करना चाहिए? There's so much, इतनी सब कुछ अब तो इतने करियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं. पहले वो जमाने में बोलते थे कि लड़का DC लग रहा है, DC की तैयारी करो. It was a big deal. अब की डेट में there's so much, there are private jobs available, very high paying jobs available. So why do you think somebody should actually prepare for this exam? See, ऑप्शंस तो पहले से बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गए हैं, अग्री, बट IAS का जो चार्म है वो आज भी वही है जो पहले था. आप सरकार का पार्ट बनने जा रहे हो. दिस इज द एग्जाम, दिस इज द सर्विस दैट गिव्स यू रिस्पेक्ट और रिकॉग्निशन, पावर, अथॉरिटी, ऑल्दो टू स्टॉप द रॉन्ग, नॉट टू डू द रॉन्ग. तो ये आपको और कहीं नहीं मिलता है. इट इज अ काइंड ऑफ unique chance to serve the nation. Moreover, this exam can be called as father of almost all the other exams in the country. वो जैसे कहते हैं ना, एक वो एड आती थी, इसको लगा डाला तो लाइफ जिंगा लगा.
तो इसकी तैयारी कर ली आपने तो बहुत सारे एग्जाम्स की तैयारी अपने आप ही हो गई। आप स्टेट के एग्जाम्स हैं, आप एसएससी के एग्जाम्स हैं, आप अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, सरकारी नौकरी जिसे हम कहते हैं, तो वो सबकी तैयारी इसमें कवर्ड है। यस, इसमें कवर हो जाती है। तो दैट इज व्हाई वी कॉल इट फादर ऑफ ऑल द एग्जाम्स। एज आई हैव ऑलरेडी सेड, चांस टू सर्व द नेशन, वो भी एक बहुत बड़ी बात है। आप डायरेक्टली सर्व करते हैं। ऑल्दो ठीक है, ये भी कहा जाता है कि बाकी सारे भी तो सर्व कर ही रहे हैं। डॉक्टर्स भी कर रहे हैं, डॉक्टर्स आर सर्विंग द नेशन, टीचर्स आर सर्विंग द नेशन, बिजनेसमैन आर पेइंग टैक्सेस, क्रिएटिंग जॉब्स, दे आर सर्विंग द नेशन, डिफेंस पीपल आर सर्विंग द नेशन। बट आई एग्री, ऑल ऑफ देम आर सर्विंग, बट दिस इज द प्लेटफॉर्म that gives you an opportunity to serve all those who are already serving the nation. You can provide, you can provide good schools to teachers, good hospitals to doctors, good law and order to businessmen. Like this, you can think. You get a chance to serve all those who are serving the nation. ऐसा तो मतलब पता तो होगा लोगों को, बट ऐसा कोई सोचता नहीं है। आपने आज ये बहुत ही सटीक तरीके से बोल दिया। Thank you so much. अच्छा, so when जितना मैंने आपके बारे में रिसर्च करी, एक चीज मुझे पता लगी, like every student of yours has one thing to say कि सर के टीचिंग मेथड्स बहुत यूनिक है। ठीक है, मैं आपकी स्टूडेंट नहीं हूँ, बट आई वुड वांट टू नो कि अगर मैं आज से लेट्स से 8-9-10 साल पहले चली जाती एंड प्रिपेयर करती, तो मैं आपके पास आके क्यों पढ़ती, ऐसे कैसे यूनिक, मतलब क्या ऐसा यूनिक टीचिंग मेथड्स पढ़ा रहे हो आप, बिकॉज एवरीबडी हैज दिस टू से अबाउट यू। सबसे पहले तो आपने रिसर्च करी, दिस थिंग इज काइंड ऑफ वेरी यूनिक फॉर मी आल्सो। यूनिक मेथड्स ऐसा कुछ नहीं होता है कि आई हैव ब्रॉट समथिंग फ्रॉम हेवंस, वहीं से डिराइव करने पड़ते हैं। वी हैव टू सी द स्टूडेंट्स, हाउ आर दे अंडरस्टैंडिंग। हमें एग्जाम्पल सब कुछ तो ठीक है, मैं यहाँ पे नहीं बता पाऊंगा, बिकॉज दैट इज द स्ट्रेटजी ऑफ टीचिंग एंड ऑफ द इंस्टीट्यूट आल्सो। सो ऐसा होता है कि हमें जो एग्जाम्पल लेके आना है वो स्टूडेंट की लाइफ से रिलेटेड लेके आना है। जो स्टूडेंट है वो बिल्कुल ही इज अ बिगिनर, ही इज स्टार्टिंग दीज थिंग्स अफ्रेश, ही ओनली हैज अ ड्रीम, नथिंग एल्स। तो वो स्टार्टिंग के दिनों में क्या है कि वो इतना बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड इन सब्जेक्ट्स में फील नहीं करते। तो वी हैव टू टेक द एग्जांपल्स फ्रॉम हिज लाइफ, फ्रॉम हिज एज ग्रुप, फ्रॉम हिज रीजन, फ्रॉम इवन in his language, trending movies, and we make one thing very sure कि क्लासरूम छोड़ने से पहले बच्चे को सब कुछ समझ में आए। All the teachers at द्रोणाचार्य IAS हम एक काम करते हैं कि छोड़ने से पहले एक बार फिर से सम अप करें और स्टूडेंट्स को बोलने दें। फिर हम उनसे ये कहते हैं कि देखो आज हमने आपको सब कुछ करा दिया, नाउ इट्स योर ड्यूटी कि आप इसको जाके भूले नहीं। तो when he or she learns something new every day, that enthusiasm, that increases, and his or her performance also increases. This exam is a long process. It's a very long process. Yeah, so this kind of continuity he has to maintain. Brings me to my next question. Long process से हमें जितना मुझे याद है, पहले लोग दिल्ली राजेंद्र नगर भागते थे, 5-5, 6-6 साल वहीं रुक रहे हैं, है ना, वहीं रह रहे हैं, वहीं पढ़ रहे हैं, खा रहे हैं। The life was all about Delhi अगर IAS की तैयारी करनी है। Now with a lot of options are also now available in Chandigarh. आप चंडीगढ़ के IAS के सिनेरियो की प्रिपरेशन के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे कि how students are in Chandigarh, how people are in this scenario? This scenario is changing nowadays, and people have started opting for Chandigarh also. First of all, I would like to tell you this. Perhaps they have also realized, students are also realizing that Chandigarh is also a good destination. I tell you from my personal experience, so many years back, I started with one classroom, about 15 years back. But within few years, now we have 9 classrooms in 7 different showrooms in Sector 36. Oh, okay. So area-wise also we can say that Dronacharya is the biggest institute. Okay. So how this happened? Because people, they responded, they accepted Chandigarh. दिल्ली का ऐसा है कि फाइन, दिल्ली बच्चे जाते हैं क्योंकि वो एक ट्रेंड बना हुआ है। दिल्ली का नाम तब बना जब और कहीं इंस्टीट्यूट्स थे ही नहीं।
ठीक है। आजकल पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू इस रीजन से दिल्ली जाना कम हुए हैं। चंडीगढ़ को उन्होंने एज अ डेस्टिनेशन एक्सेप्ट किया है। बाकी बच्चे को वो जो एक दिखाया जाता है कि रिजल्ट पता नहीं दिल्ली से ही आता है, तो मेरा एक सिंपल सा सवाल है कि अगर ज्यादा सिलेक्शंस दिल्ली से हो भी रही हैं तो सबसे ज्यादा लोग फेल कहाँ से हो रहे हैं? वो भी तो दिल्ली से ही हो रहे हैं, क्योंकि ज्यादा लोग वहीं पे जा रहे हैं। अब कहाँ से जा रहे हैं? जैसे मैंने कहा, जम्मू हैज इंस्टीट्यूट्स, चंडीगढ़ हैज इंस्टीट्यूट्स, जयपुर हैज इंस्टीट्यूट्स, इंदौर हैज, भोपाल हैज। दिस अ ह्यूज पार्ट ऑफ दिस कंट्री जिधर आज भी इंस्टीट्यूट्स नहीं है। तो उन लोगों को दिल्ली आना पड़ता है, ये उनकी मजबूरी भी है। तो दैट्स व्हाई स्टिल दिल्ली इज क्राउडेड, बट here in our region these cities are doing well and people are also responding well. तो आपको ये लगता है कि चंडीगढ़ में जब आपके पास स्टूडेंट्स आते हैं बहुत अलग अलग स्टेट्स के, तो कभी ऐसा हुआ है कि आपको लगता है कि बिकॉज चंडीगढ़ एक बहुत ही ऐसा शहर है जहाँ पे यू एक्सपोज टू अ लॉट, तो ऐसा हुआ है कि आपको बच्चे हिमाचल के स्मॉल टाउन से आया and you have anything to share in that respect ki, because you have students from so many states coming to you? Yeah, there are people हमारे पास अपर हिमाचल से भी लोग आते हैं और उनकी सक्सेस स्टोरीज भी हैं हमारे पास। पंजाब के रूरल एरिया से भी आते हैं, हरियाणा से भी आते हैं, नॉर्थ ईस्ट से भी आते हैं। Yes, नॉर्थ ईस्ट पीपल आर आल्सो प्रेफरिंग चंडीगढ़ nowadays. So yes, there are students and they are very hardworking. I must appreciate their efforts. So there are so many and they are doing well. हाँ, होता है कि चंडीगढ़, कुछ को लगता है कि चंडीगढ़ के एक बार थोड़ा सा लड़खड़ाना, I'm sure. But at this stage, your students are wise enough. They understand their priorities. Times have changed, sir. I think times have really changed. And we are also keep on telling them their priorities and reminding them the same about their aim and goals. So that's why. So अगर हम IAS की प्रिपरेशन के बारे में बात करें तो करंट अफेयर्स एक हुआ है और बहुत बारी ऐसा सोचा जाता है, लोगों को ऐसा लगता है कि एक एवरी मंथ देयर इज अ कुंजी दैट कम्स। अगर वो कुंजी पढ़ ली तो आपको उस महीने का करंट अफेयर्स पता लग गए एंड यू आर डन फॉर द एटलीस्ट दैट मंथ। इज इट ट्रू? करंट अफेयर्स को हुआ मानते हैं बच्चे, दैट इज ट्रू, लेकिन आप कुंजी इज ऑफ लास्ट मंथ्स करंट अफेयर्स। ओके, सो यू कैन से स्टेल ब्रेड। ओके, दैट इज फॉर रिविजन। आप पूरे महीने का खाना एक दिन में नहीं खा सकते, वो भी पिछले महीने में बना हुआ। आप सप्लीमेंट्स लेके भी खाना नहीं छोड़ सकते। तो करंट अफेयर्स के हवा के साथ डील कैसे करना है? सबसे पहले तो ये देखो कि करंट अफेयर्स हवा लगता क्यों है। क्योंकि हमें न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत नहीं है। हमने स्कूल में हिस्ट्री पढ़ी थी, 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया, उसके बाद हमने सब छोड़ दिया। उसके बाद आज अखबार उठा रहे हैं। पिछले 75 ईयर्स में इंडिया में बहुत कुछ हो गया, वर्ल्ड में बहुत कुछ हो गया। आज उससे रिलेट करना थोड़ा डिफरेंट लगता है, लेकिन उसका एक तरीका है। यूपीएससी को भी इस बात का पता है कि दिस थिंग इज हैपनिंग। तो हमारे सिलेबस में इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, वर्ल्ड आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 2 जैसे टॉपिक्स हैं जो अपने आप 45 से लेके वर्ल्ड हिस्ट्री जो है प्रेजेंट डे तक आ जाती है। 15 अगस्त 1947 से लेके प्रेजेंट डे तक इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस आपको ले आता है। okay. तो उसको सबसे पहले तो ऐसे सोचें कि ये बात यूपीएससी को भी पता है और सिलेबस के बीच में इम्बाइब्ड है कुछ ऐसा जो आपको इस चीज का सोल्यूशन देगा। सेकेंडली, करंट अफेयर्स न्यूज़पेपर, इसका डर है, इसीलिए आप देखेंगे, सॉरी टू से, बट जो हम लोग हैं कोचिंग सेंटर्स सबसे ज्यादा जो है यहीं पे स्ट्रेस देते हैं, यहीं पे पिच करते हैं वीडियोस में भी एंड हमें पता है कि ऑल दी कोचिंग सेंटर्स दे नो कि बच्चा डरा हुआ है। लेकिन इसमें एक गलती ये हो जाती है कि हम बच्चे की हाँ में लाना शुरू कर देते हैं। बच्चे को लगता है कुछ बड़ा हो रहा है, हम भी इसको बहुत बड़ा बनाना शुरू कर देते हैं। करंट अफेयर्स अंडरलाइन करो, नोट्स बनाओ, बहुत सारे फोल्डर्स मेंटेन करो, इंडिया चाइना का अलग करो, इंडिया पाकिस्तान का अलग करो, ऑल दी मिनिस्ट्रीज का अलग करो। देखिए, ऐसा करना पॉसिबल नहीं है। आपका घर है या नीति आयोग का दफ्तर है कि आप इतनी सारी फाइल्स, इतने सारे फोल्डर्स मेंटेन करेंगे? वो पॉसिबल नहीं है। बच्चा वो करने की कोशिश करता है, कर नहीं पाता है और ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। तो इसको ऐसे ना करके सिंपली समझना चाहिए, और कोचिंग सेंटर्स को भी ये बताना चाहिए, टीचर्स को भी ये बताना चाहिए
कि जो न्यूज़पेपर है या करंट अफेयर्स है वो छप किसके लिए रहा है। वो सिर्फ आईएएस के लिए छप रहा है या आईएएस एस्पिरेंट्स के लिए छप रहा है? इट इज फॉर एवरीबडी। तो सिंपली इसको ऐसे अप्रोच करें स्टार्टिंग में ही कि जो सबको पता होना चाहिए वही न्यूज़पेपर में प्रिंट हो रहा है, तो जो सबको पता होना चाहिए वो मुझे भी पता होना चाहिए। अगर इसको इस तरह से लेंगे तो हाँ, ये आसान बनना शुरू हो जाएगा। और एकदम से सारे नोट्स बनाना एकदम से स्टार्ट ना करें, उसका एक तरीका है, हम उसके ऊपर सेपरेटली बात कर सकते हैं, बिकॉज इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। तो आप बहुत सारे नोट्स ना बनाएं, एक नोट जरूर बनाएं। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जरूरी नहीं है कि सिर्फ आईएएस ओनली, आप हर 2 घंटे के बाद एक नोट जरूर लिखें कि मैंने पिछले 2 घंटे में क्या सीखा। ओके, राइटिंग इज अ काइंड ऑफ मेंटल एक्सरसाइज। आपको वैसे भी लाइफ में कोई कंफ्यूजन है, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, आप लिखना शुरू कर दीजिए, आप देखेंगे आपका नोट खत्म होते 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 आपकी 70% प्रॉब्लम। ये एडवाइस बहुत सारे लाइफ कोचेस भी देते हैं कि अगर आपको कहीं भी किसी चीज में लाइफ में यू फीलिंग अ लिटिल फॉगी एंड कंफ्यूज, तो यू जॉट इट डाउन, राइट इट एंड इट विल ईज आउट योर प्रॉब्लम। सो आप ये बोल रहे हो कि पढ़ाई में भी ये चीज हम लोग इनकलकेट कर सकते हैं। डेफिनेटली देखिए, आप 2 घंटे कुछ पढ़े हैं, कुछ आपको याद है, कुछ भूल गया है, कुछ कंफ्यूज्ड है किसी चीज को लेके, तो जब आप उसको, दैट इज अ काइंड ऑफ सेल्फ टॉक। यू आर टेलिंग योरसेल्फ, यू आर टेलिंग योर शैडो पर्सनालिटी, दिस इज व्हाट आई हैव अंडरस्टूड। तो उसमें क्या है कि मान लीजिए आप एक नोट लिख रहे हैं, आपको कुछ भूला, आपने ब्लैंक छोड़ दिया, आप आगे चले गए, फिर भूला, फिर ब्लैंक छोड़ दिया, आगे चले गए, फिर आपने नोट्स उठाए और इन ब्लैंक्स को भर दिया। अब जब नेक्स्ट टाइम आप इसी नोट को देखेंगे तो जो ब्लैंक्स थे वो अंडरलाइंड पोर्शन नजर आएगा। तो आपका जो कंसंट्रेशन है, जो फोकस है, सबसे पहले वहां पे हिट करेगा। तो नाउ योर कॉन्शियस माइंड विल कैच इट कि मैंने इसको दोबारा भूलना नहीं है, पिछली बार मेरे को ये भूला था। दैट अलर्टनेस हेल्प्स यू। These are the unique methods only. This is one of them. You were talking earlier. So हमने आपसे एक यूनिक मेथड निकलवा ही लिया। Anyways, मैं सारे बताने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, we'll have to have more podcasts on that then. अच्छा सर, करंट अफेयर्स में एक और जो मैंने देखा है कि जो लोग एस्पिरेंट्स को एक प्रॉब्लम आती है कि करंट अफेयर्स में क्या जरूरी है और क्या जरूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, इफ सम ऐसा बहुत बार देखा गया कि people feel that national news is the only news that they should be actually covering and studying about and it'll be asked, and international news is something that should not actually be the first priority in this current affairs का journey of हाँ। इसको मैं किसी और तरीके से आंसर करता हूँ। when a student starts his or her journey for civil services, उसमें एक बात तकरीबन हर टीचर या हर कोचिंग इंस्टीट्यूट बताने की कोशिश करता है कि व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट इज व्हाट टू स्टडी, बट समथिंग मोर देन दैट इज व्हाट नॉट टू स्टडी। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, ऑल्दो इट इज इम्पोर्टेंट व्हाट टू स्टडी, बट व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट इज व्हाट नॉट टू स्टडी। बट हाउ टू डिसाइड व्हाट नॉट टू स्टडी, दिस इज अ बिग क्वेश्चन, नोबडी टेल्स दैट। तो इसको ऐसे समझ सकते हैं, इसको let us see GS, general studies. What is general studies? General studies है क्या? इसको हम किसी भी सब्जेक्ट को 3 हिस्से में बांट सकते हैं। एक है जीके, एक है स्पेशलिस्ट स्टडीज, इन दोनों के बीच है जीएस। फॉर एग्जाम्पल, कॉमन फैक्ट्स एंड कॉमन कॉन्सेप्ट्स जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये तो हर किसी को पता होगा, चाहे वो कम पढ़ा लिखा है, दैट इज जीके। वेयर इज ताजमहल, आगरा, हु बिल्ट इट, Shahjahan, for whom, Mumtaz Mahal, all these are common things, everybody knows, this is cheek. But if I ask you कि ताजमहल का फ्रंट एलिवेशन ड्रॉ करके बताओ, साइड एलिवेशन में क्या कमियां है और क्या हो सकता था, प्रेजेंट डे की बिल्डिंग्स को साइड एलिवेशन या फ्रंट एलिवेशन क्या गाइडलाइंस देता है, दैट इज स्पेशलिस्ट स्टडी। तो स्पेशलिस्ट स्टडी वो हो गया जो आपको उस सब्जेक्ट में एक्सपर्ट बनाता है, या फॉर्मल डिग्री करे बिना समझ में नहीं आता। आपको यूनिवर्सिटी या कॉलेज जाके स्टडी करना पड़ेगा, तब आपको वो स्पेशलिस्ट स्टडीज वाला पोर्शन समझ में आएगा। यू कैन कॉल इट प्रोफेशनल डिटेल्स आल्सो। इनके बीच में एक ऐसा पोर्शन है जो आपको पता भी होना चाहिए, मतलब कॉमन स्टूडेंट्स को, और समझ में भी आ सकता है। पता भी होना चाहिए, समझ में भी आ सकता है बिना उसमें डिग्री किए। दैट इज जीएस पोर्शन। That is GS, okay. तो जिधर भी ऑपरेशनल डिटेल्स या प्रोफेशनल डिटेल्स स्टार्ट होती हैं, वहां पे जीएस खत्म हो जाता है।
एक तो इस तरह से इसको डिसाइड करें ओके व्हाट नॉट टू स्टडी जीके इज एक्सपेक्टेड, ये पता होगा, उसको नहीं भी पता है तो थोड़ा रिवाइज कर लीजिए जीके की बुक लेके। स्पेशलिस्ट स्टडी तक आपने जीएस में नहीं जाना है, ऑप्शनल में जाना है। ऑप्शनल में भी कितने लेवल तक जाना है वो एक अलग डिस्कशन है कि ग्रेजुएशन ऑनर्स तक के लेवल तक जाना है आपको, पीएचडी तक उसमें भी नहीं जाना। करंट अफेयर्स यस, वहां पे भी इम्पोर्टेंट नॉट इम्पोर्टेंट, बिकॉज यू नो बच्चा जो है वो एक हल्का सोल्यूशन ढूंढ रहा है। बच्चा एक इन्वेस्टर की तरह बिहेव कर रहा है, मैं कम टाइम लगा के जल्दी से जल्दी आईएएस कैसे बन जाऊं। दिस इज नॉट द बिहेवियर ऑफ अ स्टूडेंट, दिस इज द एटीट्यूड ऑफ एन इन्वेस्टर और अ कंज्यूमर। कम से कम देके ज्यादा से ज्यादा कैसे ले जाऊं। तो सबसे पहले तो हमें स्टूडेंट बनना होगा, इस बात को समझें और ये समझना होगा कि पढ़ना हमारा काम है, धर्म है। जब तक तैयारी कर रहे हैं तब तक तो है। ये मैं आपको एश्योरेंस देता हूं कि अगर आप ठीक से पढ़ गए, 1-1.5 साल जितनी देर भी आप तैयारी करते हैं, 2 साल, आईएएस बनेंगे, पीसीएस बनेंगे, एचसीएस बनेंगे, एचएएस बनेंगे, सिविल सर्विसेज में एज आई हैव ऑलरेडी सेड फादर ऑफ ऑल द एग्जाम्स, आपको कहीं ना कहीं सक्सेस मिलेगा। नहीं भी मिलता तो लाइफ में मिलेगा, क्योंकि आपका लेवल वही बन गया। अब करंट अफेयर्स में ये एटीट्यूड मत रखिए कि किस तरह से कम करूं। जैसा आपने पूछा व्हाट इज इंपॉर्टेंट इन करंट अफेयर्स, नेशनल इंटरनेशनल, एक बात याद रखो, जितना मर्जी पैटर्न चेंज हो जाए रश्मि, जितना भी सिलेबस चेंज हो जाए, दिस एग्जाम वाज अबाउट इंडिया, is about India and will be about India. Anything that affects India directly or indirectly is important. Okay. Iran attacked on Israel. It's recent news. We have to see what is India's response about it, what is India's stand about it, how it is affecting India-Israel relations, India-Iran relations, how it is affecting India's connectivity with Central Asia. पाकिस्तान तो वैसे ही हमें वहां से रास्ता नहीं दे रहा, अफगानिस्तान में तालिबान आ गए, इराक इज वॉर टॉर्न, सीरिया इज अंडर सिविल वॉर। एक ही रास्ता हमारा खुलता था, दैट इज ईरान। यहाँ भी वॉर शुरू हो गई तो हमारा ये रास्ता भी बंद है, हमें फिर से वो दुक्कम पोर्ट के थ्रू जाना पड़ेगा। सो एनीथिंग दैट अफेक्ट्स इंडिया is yes important for the examination. So more you love your country, better you remember things and understand things, easily you crack the exam. इतना तो इजी आपने बहुत इजी करके समझा दिया। नहीं मैं काफी देर तक बोला नहीं बट आपने करा बहुत इजी, मतलब कि एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट हैज टू डू विद इंडिया शुड बी स्टडीड। यस, एनीथिंग दैट इज अफेक्टिंग इंडिया और इज इम्पोर्टेंट फॉर इंडिया, इंटरनेशनल लेवल आल्सो, दैट हैज टू बी स्टडीड। आप कुछ भी हो रहा है आपको उसमें इंडिया खोजना है, दैट इज यू कैन से रियलिस्टिक अप्रोच ऑफ फॉरेन पॉलिसी, नेशनल इंटरेस्ट। ओके, सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लोगों को लगता है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन सा चूज करा जाए, किस में सबसे ज्यादा मार्क्स आ सकते हैं, ये वाला सब्जेक्ट बहुत स्कोरिंग है, वो वाला सब्जेक्ट बहुत स्कोरिंग है, एंड इसके ऊपर बहुत डिबेट्स भी हुई हैं। लोगों को लगता है कि देयर इज पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो वो लोगे तो पक्का मार्क्स आएंगे। इज ऐसा कुछ है? सबसे ज्यादा पीएसआई और ऑप्शनल के बारे में होता है, मैं वही पढ़ाता हूँ। आपने वैसे प्रमोशन के लिए ओपन एक मेरे लिए छोड़ दिया है, ओपन एंडेड क्वेश्चन कि मैं यहाँ पे पीएसआईआर को आसानी से प्रमोट कर लूँ, बट नो, इट इज नॉट लाइक दैट। जब मैं तैयारी करता था, व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग, तो वी हैड टू चूज 2 ऑप्शनल्स। ओके, सो आई चोज हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, पीएसआईआर जिसे हम कहते हैं, हिस्ट्री एंड पीएसआईआर। ऑल्दो आई डिड बीटेक, then mass comm and journalism, then masters in PSIR, but BTech वाला कोई technical subject मैंने तो नहीं लिया था, and so many people they don't take it. Okay. Why? आज ये वाला ऑप्शनल स्कोरिंग है, ये वाला ऑप्शनल स्कोरिंग नहीं है। मैं PSIR पढ़ाता हूँ, मैं हिस्ट्री पढ़ाता हूँ, मैं दोनों ऑप्शनल्स में पढ़ाता हूँ। लेकिन अगर मैं बताऊंगा, अगर मैं अपना गेन देखूं, तो मेरे लिए तो मैं तो यही बताऊंगा कि बेस्ट इज PSIR, बेस्ट इज हिस्ट्री। सो एवरीबडी इज डूइंग सो, ऑल द कोचिंग सेंटर्स, टीचर्स आर डूइंग सो। तो जो पढ़ाता है उसी को बेस्ट बोला जाए, बट नाउ हाउ टू चूज इट, द थिंग इज ऑनलाइन के इंटरनेट के रास्ते आप तक इतनी सारी सजेशंस, इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है कि यू आर मोर कंफ्यूज्ड। फर्स्ट criteria to select the optional is interest. Second is again interest. Okay. Third is again interest. Okay.
एनी सब्जेक्ट दैट यू फील यू आर इंटरेस्टेड इनफ कि आपको लगे कि मैं बस धरती पे यही पढ़ने आया हूँ, should be option, आप उसको पर्सनली लेते हो कि इसके बारे में तो यार ये तो मेरी चीज है, तो दैट शुड बी योर ऑप्शनल. मुझे ये फीलिंग हिस्ट्री PSIR से आई थी. और ऑल दी सब्जेक्ट्स आर स्कोरिंग, सबसे सिलेक्शन हो रही है, तो आपके लिए कौन सा अच्छा है जो आपको आता है. दो कैटेगरीज में हम बांट सकते हैं. एक ऐसे ऑप्शनल्स हैं जो आपको जीएस में हेल्प करते हैं, एक ऐसे हैं जो जीएस में हेल्प नहीं करते. जैसे फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है, इंजीनियरिंग है, ये आपको जीएस में हेल्प डायरेक्टली नहीं करते हैं. नहीं करेंगे. ओके. तो अगर आप इन सब्जेक्ट्स में आउटस्टैंडिंग है इन योर ग्रेजुएशन, इन योर पोस्ट ग्रेजुएशन, somebody has done MSc in psychology with 80% marks, तो उसको ये ले लेना चाहिए. ओके. अदरवाइज बिल्कुल मैटर नहीं करता कि आपकी बैकग्राउंड क्या है. इट इज ऑल अबाउट इंटरेस्ट. आप ऐसे सब्जेक्ट्स ले सकते हैं जो जीएस में भी आपको हेल्प करते हैं, जैसे पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस है, हिस्ट्री है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, सोशियोलॉजी है, ज्योग्राफी है. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑप्ट दी सब्जेक्ट्स ओनली. और क्योंकि ये ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स हैं तो इनमें इंटरेस्ट भी बनाया जा सकता है. साइंस स्टूडेंट्स आल्सो कम एंड दे ऑप्ट फॉर इट. तो एज आई हैव ऑलरेडी सेड 3 क्राइटेरियाज, इंटरेस्ट. सबसे पहले वो बैकग्राउंड बाद की चीज है. लेकिन बैकग्राउंड को भी ऐसे नहीं लेना कि मैंने बीटेक तो कैंटीन पे बैठ के करी थी, तो मैं जाके टेक्निकल सब्जेक्ट ऑप्ट कर लूंगा मैं बीटेक. जब मुझे आता ही नहीं है तो दैट कांट बी माय ऑप्शनल. आई हैव टू सर्च माई सेल्फ अगेन. तो choosing the optional is like discovery of self. Fair enough. So, success stories. आपके कोई ऐसा स्टूडेंट जिसने बहुत स्ट्रगल करी हो, you've seen that person coming to you every day to study, despite having कुछ बैकग्राउंड कईयों की बैकग्राउंड में मतलब everybody is not that blessed. और या फिर किसी को एक प्रॉपर अच्छी जॉब पाने के बाद में लगता है कि मैं IAS क्लियर कर सकता हूँ. कोई आपके पास वर्किंग भी बच्चा, कोई वर्किंग पर्सन हो जो आपके पास आया हो कि मुझे सर अब IAS बनना है, कि ठीक है अब मैं एक जॉब कर रही हूँ बट मुझे अब IAS बनना है, एंड he or she has cracked the exam. Yes. Any success stories that you want to share with us? Rashmi, I think anybody who prepares for IAS gets success at any stage of life. Let us not call the people who have cracked the exam as successful only. People who could not crack, they are also very successful. First of all, so fear of failure, is very common. Very common. But in this exam, there is total win-win situation. Okay. Even those who could not crack the exam, they also have the same mental level and mental ability whatever those people have who have cracked. First of all, this thing, never consider yourself that I have failed in this particular exam so I am a failure in life. आपको भी मुझे नहीं लगता कोई ऐसा मिला होगा आज तक कि मैं जी सिविल सर्विसेज की तैयारी करता था और मेरा क्रैक नहीं हुआ, मेरी लाइफ बर्बाद हो गई. नहीं, आप जिस भी फील्ड में जाते हो उसमें दूसरों को आउटशाइन कर देते हो बिकॉज ऑफ द लेवल दैट यू हैव अचीव्ड. यहाँ तक एग्जाम में सक्सेसफुल कैंडिडेट्स का सवाल है, जैसा आपने कहा वर्किंग, आई रिमेम्बर there is rather one student of mine. She her name is Jyotinder. She was working with PGI as a nurse. So very hard working. अब आपको पता है PGI का तो किस तरह का हेक्टिक शेड्यूल होता है और नाइट ड्यूटीज करना और उसके बाद भी अगले दिन क्लास लगाना और जिसे कहते हैं इनडिफैटिगेबल टायरलेस पर्सनैलिटी. तो वो हार्डवर्क मुझे हमेशा याद आता है और मैं खुद इंस्पायर होता हूँ उससे. शी क्रैक्ड द एग्जाम. ओके. आफ्टर 2 years of hard work she cracked. और वो 2 साल में नाइट ड्यूटी, दिन की ड्यूटी, पीजे में नर्स होना इज yes, अलग-अलग शिफ्ट्स में काम करना. क्लास टाइम तो एक ही है. यूज्ड टू मैनेज, कभी इवनिंग में आना, कभी मॉर्निंग में आना, मतलब कभी कंप्लेंट नहीं किया. The good part is that you also gave her that flexibility of yeah, we coming. also allowed but लोग नहीं आते हैं फिर भी. but I remember that girl coming. There was another boy, दिलमिल सिंह. एक बार मुझे याद है वो बारिश में भीग के आई.
अच्छा. yeah, and he was sitting at the last bench. AC चल रहे थे और पूरी क्लास होने के बाद he came to me, सर इस एग्जाम में इसको क्लियर करने के लिए क्या करना पड़ता है दूसरों से अलग? आई सेड यही करना पड़ता है जो किया है आज. This approach, this attitude will make you. And he also cracked the exam. He cracked in first attempt. Oh, that's very rare actually. So another girl, Priya, she's PPS. Her days posted in Mohali only. Oh. So she started preparation in 2017 and cracked in 21. 4 continuous years. 4 years. Yeah, tireless efforts. And she got the result. Nowadays, very happy. So there are so many stories. I'm sure. रात हो जाएगी बात करते करते. 4 साल के बाद अगर किसी का क्रैक हो तो वो उस 4 साल में मतलब दिमाग में कितना कुछ आता है. You get low also, you feel so demotivated also. So how again आप ऐसे बच्चों का जिनका एक अटेम्प्ट नहीं क्लियर हुआ, लेट्स से सेकंड भी नहीं हुआ, बट दे फील कि हम ये कर सकते हैं, कैलिबर है करने का हम में, उनको आप मोटिवेटेड और ट्रैक पे यू स्टे फोकस्ड, कुछ एडवाइस यू वांट टू गिव? हम उनके लिए क्या करते हैं पहले मैं आपको ये बताता हूँ. इवन वी अंडरस्टैंड दैट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू क्रैक इन द फर्स्ट अटेम्प्ट. तो हम एक तो सब्सिक्वेंट रिविजन्स जो हैं आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द सिलेबस, यू वांट टू revise the syllabus, repeat the syllabus. We do not charge any fee for that in द्रोणाचार्य. We understand ये करना पड़ सकता है क्योंकि हम सारे टीचर्स भी समझते हैं, हम भी कभी एस्पिरेंट्स थे. तो सब्सिक्वेंट रिविजन स्टिल दी लास्ट चांस. हम कोई फी चार्ज नहीं करते हैं. मटेरियल का भी कुछ चार्ज नहीं करते हैं. एंड वी प्रोवाइड सेपरेट क्लासेस फॉर रिविजन स्टूडेंट्स. सब कुछ रेपिटेशन में. बाकी ऐसा है कि प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी होते हैं लोगों के, सबके होते हैं. देयर आर 26 लेटर्स. पंजाबी की बात करें तो 42 लेटर्स. 35 अकड़ी. तो उसके बाद भी आ जाते हैं बिंदी वाले तो 42 बन जाते हैं. अच्छा, हाँ. तो 35 तो ही हैं. तो अब अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं होता है तो यू कैन गो फॉर any other job or degree along with that, and you can revise while doing that. Syllabus complete किया फर्स्ट ईयर में, हो गया, well and good. नहीं हुआ तो आप किसी भी दूसरी चीज के साथ साथ रिविजन्स एंड रेपिटेशंस कर सकते हो. एज द्रोणाचार्य प्रोवाइड्स यू, तो आप अपने लेवल पे भी कर सकते हो. हमारे साथ हैं तो हम तो प्रोवाइड करेंगे, हमारे साथ भी कर सकते हैं. भगवान ना करे अगर बात लास्ट चांस तक पहुंचती है तो सेकंड लास्ट चांस से ही आप, जैसे वो क्रिकेट में कहते हैं ना, इट इज ऑलवेज गुड टू हिट इन द सेकंड लास्ट ओवर. तो आप लास्ट की वेट ना करें, सेकंड लास्ट में ही एक बार फिर से सब चीज से ब्रेक लेके फिर से अपीयर हो जाएं. Focus on the exam. This, exam is like it is followed religiously. इसमें क्या होता है कि बंदा पहले अपने चांसेस, पहला चांस लेता है पूरे एंथुसियाज्म के साथ. नहीं हुआ, कई लोग दूसरा भी लेते हैं सब कुछ छोड़ के. तीसरे से फिर वो कोई दूसरे करियर को स्टार्ट कर लेते हैं. थर्ड अटेम्प्ट, फोर्थ अटेम्प्ट, अगर फिफ्थ तक बात गई तो एक बार फिर से ब्रेक ले लीजिए फिफ्थ और सिक्स्थ में. उसमें भी अगर नहीं होता है तो स्टेट के चांसेस हैं. 35 years along with your job you can carry on your dream. Fair enough. 35 years स्टेट, 42 तो हरियाणा में तो और भी ज्यादा होता है. और उसके बाद तो फिर यही होता है कि अब बच्चों की वेट करता है बंदा कि 21 के कब होंगे, फिर इनको लगाऊंगा उस चीज पे. ये भी सही है. ये भी सही है. So sir, do you think in this whole process of preparing for the exam, going to give the exam, clearing your prelims, then mains, then your interview, of course we talked about कि luck तो plays a very important role कि but do you think कि पूजा पाठ, spiritual होना, meditation, does this also, I mean, it helps in the process? Very different type of question. Second time I'm facing this. एक बार एक सेमिनार में भी I faced the same question. रश्मि, this is important. अगर कोई ये करता है, उसकी ये हैबिट है, पाठ पूजा करना, मेडिटेशन करना, वो एग्जाम में हेल्प करता है डेफिनेटली. व्हाई? बिकॉज सिलेबस थोड़ा बड़ा है,
प्रोसेस थोड़ा लंबा है, कंपटीशन है। मोरओवर आईएएस का सिलेबस बहुत इंटरेस्टिंग है, आई वुड लाइक टू ऐड। जो आपके ऊपर प्रेशर है वो कंपटीशन का है। हाँ, फाइन, कंपटीशन का, कंपटीशन का जो प्रेशर है दैट समटाइम्स यू नो स्ट्रैंगुलेट्स द पर्सन। तो उसमें पाठ पूजा, कोई डेली पाठ करता है, पूजा करता है, तो दैट गिव्स यू mental stability. That wavering mind, you know, gets focused again. कुछ साल पहले मुझे याद है जब ये जामिया मिलिया के कुछ स्टूडेंट्स एकदम से सेलेक्ट हुए थे, तो टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक आर्टिकल लगाया था फ्रॉम हाफिज टू आईएएस। तो वो मुझे आर्टिकल आज भी याद आता है। तो देयर आर सो मेनी, आई हैव सीन सो मेनी बैप्टाइज्ड पीपल क्रैकिंग द एग्जाम। तो एक माइंड को स्टेबल करने की बात है, कोई कैसे भी करे। पाठ पूजा उसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। somebody is doing it, तो उसको कैरी ऑन करना चाहिए। आई एम नॉट सेइंग कि जो नहीं कर रहे हैं उनको एकदम से आस्तिक होकर वो सब करना चाहिए। मैं उनको कोई ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, सलाह नहीं दे रहा हूँ। उनकी पर्सनल विश है, उनकी मर्जी है, लेकिन अगर कोई कर रहा है तो कैरी ऑन करे, ये उसको हेल्प करेगा। और दूसरे जो है नहीं करते हैं वो किसी और तरीके से माइंड को स्टेबल करें, मेडिटेट करें, व्हाटएवर हेल्प्स, म्यूजिक हेल्प्स, योग करें, योगा करें, म्यूजिक सुने, जैसे भी वो रिलैक्स होते हैं वो वैसे करें। So sir, any advice that you want to give to everybody, not only somebody who's preparing for IAS, but in general anybody, any student, जो कोई भी, चाहे वो 10th का बोर्ड दे रहा है या +2 का बोर्ड दे रहा है या एक नई क्लास में जा रहा है, anything, any advice that you want to give, जो इतने सालों के एक्सपीरियंस से आपने, एक होता ना कि एक चीज समझी है और you want to, you know, give away that teaching. Whatever you are doing, do with full commitment. Don't say for the sake of saying, I want to do this. No. Life is big. It gives you opportunities. Grab those chances. Do with commitment. Do with full grit. Do with full enthusiasm. हो गया, well and good. नहीं होता है तो हमेशा याद रखें, there is always a next chance. जैसा वो एक पोएम है, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। तो ऑलवेज बी प्रिपेयर टू सिंग अनदर सॉन्ग। और जो भी करें उसको कैजुअली नहीं कि साथ साथ में मैं रील्स भी देख रहा हूँ, मैं इंटरनेट पे बहुत क्लटर मिलता है वो सब भी फॉलो कर रहा हूँ, वो सब आपका फोकस हिला देता है। तो इट इज योर ड्यूटी टू स्टे फोकस्ड, इट इज योर ड्यूटी टू कंप्लीट इट। नहीं होगा तो और भी रास्ते हैं, सितारों से आगे जहां और भी हैं, बट अपना पूरा 100% फेथफुल अटेम्प्ट वो देना चाहिए, लेकिन घबरा के नहीं, बिकॉज देयर इज ऑलवेज अ नेक्स्ट चांस। ओके सर, थैंक यू, इट वेंट वेल।